Welcome to Success EduTech. My name is Mahadev Mehtre. Today we are going to learn Subject Environmental Studies, Chapter number 2, Motions of the Earth. आज हम Environmental Studies में से पार्ट दूसरा Motions of the Earth यानी पृथ्वी का घूमना, यह पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Rotation. Try this. Take a top, spin it and observe its movement. The top turns around itself. Any object that turns about itself actually turns around a certain imaginary line. यानी एक लट्टू लो, उसे घुमाकर उसका प्रेक्षण करो। लट्टू स्वयं के ही चारों ओर घूमता है। अपने ही चारों ओर घूमने वाला कोई पिंड वास्तव में एक अदृश्य खड़ी रेखा के चारों ओर घूमता रहता है। The turning of an object around itself is called rotation. यानी पिंड के स्वयं के ही चारों ओर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। And the imaginary line around which it rotates is called its axis of rotation. यानी वह पिंड जिस अदृश्य रेखा के चारों ओर घूमता है उसे पिंड का परिभ्रमण का अक्ष अथवा धुरी कहते हैं। नेक्स्ट, द अर्थ्स रोटेशन. ट्राई दिस. टेक अ ग्लोब लाइक द वन इन द पिक्चर and spin it. Note the line around which it rotates. Now take a plumb line and hold it close to the globe as shown in the picture. If you cannot get plumb line, tie a long thread to an eraser and make one. यानी हमें पृथ्वी का परिभ्रमण क्या है हम देख लेंगे। करके देखो। पृथ्वी का एक गोलक ग्लोब लो, उसे घुमाकर देखो वह कौन सी रेखा के चारों ओर परिभ्रमण करता है उसे देखो। अब एक साहुल लेकर चित्र में दिखाए हुए अनुसार पृथ्वी की ग्लोब के समीप स्थिर करो। साहुल न मिल सके तो एक रबड़ में धागा बांधकर साहुल तैयार करो। You will see that the plumb line and the earth's axis are at an angle to each other. यानी तुम्हारे ध्यान में आएगा कि साहुल और पृथ्वी के अक्ष ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ कोण बनाती है। That is, the earth's axis is inclined. The earth rotates with its axis inclined like this. The line NS in the picture shows the earth's axis. It passes through the center of the earth. The points N and S are called the poles of the earth. N is the north pole of the earth and S is the south pole. If a circle were drawn around the surface of the earth exactly in between the north and south poles, it would divide the earth into two equal parts. This imaginary circle is called the equator. The two equal parts it makes of the earth are called the northern hemisphere and the southern hemisphere respectively.
इसका अर्थ है कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। इसी झुकी हुई स्थिति में वह परिभ्रमण करती रहती है। चित्र में पृथ्वी का अक्ष रेखा NS द्वारा दिखाया गया है। यह रेखा पृथ्वी के केंद्र में से होकर जाती है। बिंदु N तथा बिंदु S को पृथ्वी के ध्रुव कहते हैं। N पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और S पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के मध्य भाग में पृथ्वी के पृष्ठभाग पर एक वृत्त खींचने पर पृथ्वी के दो समान भाग हो जाते हैं। पृथ्वी के इस काल्पनिक वृत्त को विषुववृत्त कहते हैं। ऊपर दिया गया पृथ्वी का ग्लोब देखो। विषुववृत्त द्वारा बनने वाले पृथ्वी के दो समान भागों को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया गया है। ट्राई दिस। Stand a candle in the middle of a large table. Draw a big circle around the candle. Place a globe at any point on this circle. Light the candle. See that it is dark in the room. Suppose that the candle is the sun. यानी कि किसी बड़े मेज पर उसके बीचों बीच एक मोमबत्ती खड़ी करो। मोमबत्ती के चारों ओर एक बड़ा वृत्त खींचो। इस वृत्त के किसी बिंदु पर पृथ्वी का गोलक रखो। मोमबत्ती जलाओ। कमरे में अंधकार करो। मान लो कि मोमबत्ती ही सूर्य है। Observe which part of the globe gets the sun's light and which one does not. देखो कि पृथ्वी के गोलक के किस भाग पर उजाला पड़ता है और किस भाग पर उजाला नहीं पड़ता। Now looking at the globe from the direction of the North Pole, turn it anti-clockwise. This is how the Earth rotates. That is, it rotates from west to east. As the Earth rotates, its different parts come into the light of the sun one after the other and turn away from it also in the same order. यानी कि पृथ्वी के ग्लोब को उत्तरी ध्रुव की ओर से देखो और उसे घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घुमाओ। हमारी पृथ्वी भी अपने चारों ओर इसी दिशा में अर्थात पश्चिम की और पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के गोल के विभिन्न भाग क्रमशः उजाले में आते हैं और उसी क्रम में उजाले से दूर जाते हैं। अतः हम ऐसा कहते हैं कि जिस भाग पर उजाला है वहाँ दिन है और जिस भाग पर उजाला नहीं है वहाँ रात है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे के पार्ट में हम सनसेट एंड सनराइज के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद ईयर यानी एक साल 365 डेज कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। एंड देन द फुल मून एंड द न्यू मून, इसके बारे में देखने वाले हैं।
और एंड में द लूनार मंथ एंड डेज, तिथि क्या है, ये सब कुछ हम आगे के पार्ट में देखने वाले हैं। बट अब तक जो भी हमने रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का घूमना, इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ हमने देखा है, उसको हम बार बार देखकर बार बार सुनना है। उसको रिपीटेडली जब हम सुनेंगे तब हमें ये पक्का याद आने वाला है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। टुडे वी स्टॉप here. Next lecture we will meet on next points. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Success EduTech team.